प्रिंसिपल साहब, मैडम, मेरे अजीज साथियों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम सब यहाँ खास मौके के लिए जमा हुए हैं। 15 अगस्त यौम आज़ादी, ये वो दिन है जब हमारे सरजमीन ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की रोशनी हासिल की है। ये वो दिन है हमें कुर्बानी और मेहनत एहतियात की अहमियत होती है। यौम आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और अब हम आज आज़ाद फिजा में सांस ले सके। इन्होंने अपने घर बार, अपनी जान तक के कुर्बान दी है ताकि आने वाली नस्लें गुलामी की जिल्लत से ना झेलें। सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि आज हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। और ये आज़ादी हमें कैसे मिली ये तो आप लोग को मालूम होगा। क्या एक कश्ती में सजा के मिल गई हमारे को? इसके लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ी, कई जद्दोजहद करने पड़े, कई लोगों को जेल जाना पड़ा, कई लोगों को फांसी हुई, तब कहीं जाकर हमें ये आज़ादी नसीब हुई। ये सारी बातें हम या तो तकरीर में सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। आप लोग वॉइस लिसन केयरफुली, क्लास में भी बताते नया होता है बेटे। अभी क्या बोल रहे हैं? आजादी इतनी मुसीबत से मिली ना, तो जरा बैठ नहीं सकते क्या? मुसीबत उठा के थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लिए बेटा। अब दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ। तो ये सारी बातें ऐसे तकलीफों से, ऐसी कुर्बानियों से मिली है। आपकी कुर्बानी नहीं मांगता, सिर्फ आपका वक्त और आपकी वफादारी मांगता है। तो अपने आप को के लिए तैयार रखें, वक्त को जाया ना करें, तालीम की अहमियत को समझें और ये वक्त आपके लिए बहुत बहुत कीमती है। अल्लाह बरकातहू। ముందుగా మీరందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సమావేశమైన ముఖ్య విషయం స్వాతంత్ర దినోత్సవం. స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి ఎంతో త్యాగ ఫలం మనకు ఈరోజు సుఖంగా జీవనం కొనసాగిస్తుంది. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మన భారతదేశం బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉండేది. ఎందరో మహానీయుల త్యాగ ఫలం మనకు ఈరోజు స్వాతంత్రం లభించింది. మనం సుఖంగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మంచిగా చదువుకొని ప్లీజ్ నాజియా టీచర్ కమ్ ఫార్వర్డ్. శ్రీయుత నీలవేంద్ర ప్రధానోపాధ్యాయులు స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. ఎంతో మంది త్యాగమూర్తులు దీనికోసం పోరాడి మనకు ఈ స్వతంత్రాన్ని తెచ్చారు. అట్లాంటి స్వతంత్రానికి అందరూ కృషి చేసి ముందుకు సాగాలని నా ఆశ. ఇంతటితో నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. I'm Prados from 10th standard. Today, me and my friends are doing debate on the topic artificial intelligence. On my left hand side, I have Ummehani, Fatima, Tamanna, Memuna, Mariam, who believe that AI is a helper. Whereas at my right hand side, I have Sidra, Mahin, Amina, Rushda and Sabah. They believe that AI is a dangerous tool. Artificial intelligence is a machine that can think, learn and make its own decisions. But the big question is that AI is a helpful tool or is a dangerous invention. Let's see what our speaker Mariam will give. I think that AI is useful because it is used in traffic control, disaster management, weather forecast and also even predicting the environment. And also used in many industries, factories, customer services, etc. I don't think so, Mariam. When you are talking about advantages, like lack of emotion, lack of creativity, laziness of the people, the health issues and many more. But Rushda, you are only talking about the disadvantages here. There are numerous advantages too. Like the first major advantage of implementing AI is that it decreases the human error as well as it decreases human risk. However, AI is not about replacing humans, but it will create empowerment and industry.
generation what we can do for our country, because every single step can count. आओ चलकर आगाज करते हैं, आओ चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, अरे आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने। आओ मिलकर देश के वेलफेयर की बात करते हैं। हमसे सवाल कर रहा है कि क्या बात है भारत, आज मैं लहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के लिए इस्तेमाल क्यों हो रहा है। करा उठती है ये धरती जब एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के जिस्म के चित्रों को देखकर बिलक बिलक कर रोती हुई कहती है कि साहब आप तो धरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा जिस्म कैसे ले लूं। चीख उठती है इंसानियत जब वो बेवा की खामोश सिसकियां चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि कुछ पता ही नहीं। अरे साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा है, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। So as a citizen of India, this is our duty. So it is not a gift of celebration, it is a reminder of our responsibility towards our country. So let us work hard and stay united and do work hard for betterment of our nation. Thank you very much for sincerely listening my speech. At last, with these 2 lines, I would like to stop here. A lot to those who have given me a chance to tell something about you in front of Honorable Chief Supremo Correspondent Ali Janab Dr. Muhammad Shaukat Sahab. Good morning to all of you. Myself Sayyid Abdul Razak Khadri. Today is 15 August. Today is Independence Day. We got freedom on this day and have a happy Independence Day to all of you. Jazakallahu fi darain. Jai Hind. Good morning, one and all. I am Rahim Khan from 10th standard. Today, on 15th August, we are celebrating Independence Day, a day that marks freedom from colonial rule. We remember the sacrifices of our freedom fighters who fought tirelessly for our nation independence. As we celebrate this day, we must also remember our responsibilities towards our nation. We must work together. We must work together to create a strongful and powerful nation. Let us strive for the unity, equality and justice. Let us make India a nation where every citizen can live with pride and can live freely. I am Tamanna from 10th standard. Dear fellow students, my respected teachers and honorable principals, today as we celebrate our 79th Independence Day, let us remember the contribution of our Muslim freedom fighters who played a crucial role in our struggle for independence. From Maulana Abdul Kalam Azad to Abdul Ghaffar Khan, from Ashfaqullah Khan to Begum Hazrat Mahal, all our Muslim freedom fighters sacrificed their lives for our nation's freedom. Thank you. Happy Independence to all. Respected Principal Sir, Principal Ma'am, and my dear staff, and my beloved children. Happy Independence to all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy Independence Day.
everyone. We are celebrating our 79th Republic Day. और is it? तो पूरे present है यहाँ पर. Which day we are celebrating here? Independence Day. Very good. So here we have gathered to celebrate our Independence Day. Is it? Why we are celebrating it? Are we really independent? No. आज ये जो झंडा लहरा रहा है, क्यों लहरा रहा है? क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? क्या हमारे पास फ्रीडम है? क्या ये मेरी आवाज हर एक लड़के को और हर एक लड़की को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तक पहुँच रही है? क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? शायद मुझे नहीं लगता। अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो शायद आज नाथूराम गोडसे की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद बुलेट निकालते और खुद को मारकर मर जाते। क्योंकि ये आजादी वो आजादी नहीं है जिसके लिए उन्होंने ख्वाब देखा था। महात्मा गांधी ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, हर एक मुसलमान ने, हर एक हिंदू ने, हर एक क्रिश्चियन ने ये ख्वाब नहीं देखा था। एक ऐसा मुल्क उन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बस लड़ते रहे। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसके लिए लोग वो जमाने में आजादी से पहले डरा करते थे। आज जो हम मना रहे हैं वो एक डर है। क्या हम आजाद हैं? क्या हम एक हैं? नहीं, शायद आज हम एक नहीं हैं। हम आजाद तो है पर हम एक नहीं हैं। ये क्यों हो रहा है? ये कम्युनलिज्म कौन पैदा कर रहा है हमें? ये वो आजादी नहीं है जिस आजादी के लिए हमने ख्वाब देखा था। ये वो सच है जो हर एक मुसलमान के दिल में था, यानी आजादी से पहले, कि फ्यूचर में जाकर ये हिंदुस्तान में जो हिंदू है हमें रहने नहीं देंगे। क्या वो आज हो रहा है? क्या इसी इंडिपेंडेंस के लिए हर एक इंसान ने अपनी कुर्बानी दी थी? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now today we are celebrating Independence Day. You know, in 15th August, in Independence we are getting. Now today is the date after 78 years, same day, date and week, there came in our in front of you and standing this speech in front of you. Thank you so much. Yom Azadi Mubarak. And I really thankful to Mateen teacher, Zahid sir and all. Happy Independence Day to all. Today we are gathered to celebrate the most important day in our national history, Independence Day. On this day in 1947, our country gained freedom after years of struggle and sacrifice. By our brave, a flag does not wave by wind alone, it moves with the breath of nations consigned. Freedom is not the absence of change, but the presence of courage to protect what is right. Let the truth sleep. Even the loudest anthem won't sound like silence. Independence Day on 15 August because why? Because of the end of British. That's why we celebrate 15 August. And when we get independence? 19? I'd like to welcome my principal sir, principal ma'am, my dear staff. We all gather for 15th August. I'd like to do one shairi on this. Okay? तिरंगे की हर लहर में है शान हमारी, तिरंगे के हर लहर में है शान हमारी, शहीदों की कुर्बानी से है पहचान हमारी, आजाद मिट्टी का दर्द छुपाना है हमको, जीवन का हर पल भारत के नाम हमारे। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
Happy 79th Independence Day, everyone. चलिए बिस्मिल्लाह। सुना है आप बोलते हैं तो फूल बरसते हैं। सुना है आप बोलते हैं तो फूल बरसते हैं, कभी सच्चाई का पसीना टपकता है। सुना है आप जब बोलते हैं तो फूल बरसते हैं। चलो आज सुन के देखेंगे, कभी लफ्जों से खुशबू आती है, कभी सच्चाई का पसीना टपकता है और कभी दिल धड़कने एक खून की दुआएं बन जाती है। I would like to call our principal sir to give the speech. क्या समझ में आ रहा है? जोर से बोलो। लहराने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? देखो कैसे लहरा रहा है हमारा तिरंगा। लहरा रहा ना? क्या जरूरी है इसके लिए? हवा की जरूरत है। तो उसी तरीके से हमको इस हिंदुस्तान में आजाद रहने के लिए हमारा जमीन को जिंदा रखना जरूरी है। किसको जिंदा रखना जरूरी है? Nowadays, it is commonly known as the Mughals invade India and they rule on Indians. ये कहा जाता है कि मुगलों ने हिंदुस्तान पे हमला किया और हमारे हिंदुस्तान को लूट लिया। मुगलों ने इंडिया पे अटैक किया। दिस इज करेक्ट। आपको हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। वही टर्न बैक होना चाहिए। मुगल दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान, इंडिया में आए और यहाँ पर अटैक करे और दिल्ली को फतेह हासिल हुई और उसके बाद मुगलों की हुकूमत चली ऑलमोस्ट 1526 से लेके 1857 तक। कितने साल होते हैं? 1526 को पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। हरियाणा और दिल्ली के आसपास में एक पानीपत एक इलाका है, वहां पर हुआ था जो बाबर ने अटैक किया। और पहला ही पॉइंट ये बताता है कि मुसलमानों ने इंडिया में आके नॉन मुस्लिम के साथ लड़ाई नहीं की। यू शुड नो द हिस्ट्री। यस, ग्रुप लीडर्स 8th क्लास 9th क्लास, यू शुड नो द रियल फैक्ट। हम जब भी न्यूज खोलते हैं तो अकबर रोड को चेंज कर दिया जाए, बाबर रोड को चेंज कर दिया जाए, औरंगाबाद को नाम बदल दिया जाए, जहां जहां मुगलों का नाम है वहां का नाम बदल दिया जाए और दूसरे नाम वहां पर रख दिया जाए। फिर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके पास ज्यादा वोट रहेंगे वो बिल पास होगा, वो काम हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोला, ये लहराने के लिए क्या होना है हमको? दो, जमीर जिंदा होना चाहिए। आप भी जी रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, गांधी जी भी ऑक्सीजन के साथ लिए, नाथूराम गोडसे भी ऑक्सीजन के साथ लिया। दोनों की जिंदगी में फर्क था ना? गांधी जी और नाथूराम गोडसे दोनों में फर्क था। वो भी जिंदा था, वो भी जिंदा था, लेकिन एक सच्चाई के रास्ते पे था और एक बुराई के रास्ते पे था। उसके दिमाग उनके बोलने पर फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। Our principal man, please come forward for his inspirational words, because every program of our institution is incomplete without ma'am's inspirational word. So please, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बट मैं कहती हूँ कि हर कोई कैद है, हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान किस चीज के साथ कैद है ये बोलिए मुझे। हर कोई, और उसके साथ में एक जैसा उस टाइम पे पुलिस वगैरह होती थी ना, मगर आपके साथ भी एक पुलिस लगी हुई है जो हर वक्त आपको गुलाम बना के रखे हुई है। बताइए हर कोई उसका गुलाम। आज हम लोग आजाद नहीं है। हम लोग को गुलाम जब उस टाइम पे अंग्रेज क्या करे, वो अपनी जहानत से आपस में लड़ाए, गुलाम बनाए, वो चीज अलग है। मगर यहाँ पर हुकूमत आपको इस तरीके का गुलाम बना चुकी है कि हर कोई कैद हो जाए
मोबाइल का इस्तेमाल कम करते हैं वो बहुत टॉपर्स आए हैं। ये तजुर्बा मुझे नीट के एग्जाम से मारिया के थ्रू से हुआ, क्योंकि चैतन्य वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को हॉस्टल में रख देते हैं। कहाँ पर रखते हैं? हॉस्टल में। पर 18 घंटे की पढ़ाई होती है, उस दौरान में वो बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं है। पेरेंट्स से बात करना है, उनको एक 10 से 15 मिनट का वक्त दिया जाता। आज आपको बोले बच्चों पढ़ो, नहीं हर चीज मोबाइल में, कोई चीज देखना है, पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। बस पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए हैं, वो बेचारे मजबूर है आपकी बात को एक्सेप्ट। तो ये सही है? तो इस तरीके से आप लोग बनेंगे बड़े इंसान? बनेंगे? तो आज के इस आजादी के मौके पर हर बच्चे से मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग एक अपने अंदर खुद से प्रॉमिस कर ले, ना पेरेंट्स से, ना मुझसे, ना किसी से। अगर आप लोग ये झंडे की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो सब लोग ये और लीजिए कि आज से हम लोग ये वादा करते हैं, मोबाइल फोन को अवॉइड करेंगे, पढ़ने लिखने की तरफ दिल से पढ़ेंगे, मोबाइल से आजादी लेंगे, शौकत से जायद से जैसे एक मेंटर्स बनेंगे। हाँ लीजिए, बोलिए, हमारे नेशन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग मोबाइल से आजादी चाहते हैं। कुर्बान दिए जान इस खाके वतन पर हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं। हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं। तुम लोग देख लो आजादी की तारीफ उठाकर, तुम लोग देख लो आजादी की तारीफ उठाकर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं है। Rida 70. Ringo Pramoy Adnan 9B. कैसे जरा